السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس منه۔ جمعیت و جماعت کے ادارے کے ذمہ داران، مدرسہ دارالحدیث عربیہ سلفیہ سرسی کے موقر اراکین ذمہ داران، اس سے منسلک تمام تر افراد، آج جو یہاں اس مدرسے کے گراؤنڈ میں، اس کے میدان میں جو سالانہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہے، انعامی تکریمی پروگرام بھی ہے، اور مدرسے کی تعلیمی مالی رپورٹ وغیرہ کی بھی مناسبت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جلسہ بھی ہے۔ مختلف موضوعات پر اہل علم، مہمانان اور دیگر مشارکین خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے تمام تر ذمہ داران اور اس اجلاس کی مناسبت پر ملک کے مختلف گوشوں سے ہمارے معزز بزرگان، علماء کرام، ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ کرناٹکا و گوا کے امیر محترم اور ناظم محترم فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامعی صاحب، جناب اسلم خان صاحب، اسی طرح سے تامل ناڈو اور پوڈیچری کے امیر محترم استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حافظہ اللہ، اور ہمارے مربی سرپرست صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دیرینہ دوست اور جماعت کے غیور خطیب منہجی مقرر فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبد الحمید رحمانی حافظہ اللہ، اسی طرح سے اس پورے خطے کے اور خصوصیت کے ساتھ سرسی کے تعلیمی دعوتی سلسلے کے روح رواں ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالغفور حافظ عبدالغفور جامعی حافظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت کے مختلف علاقوں کے ذمہ داران، ضلعی، صوبائی، شہری، مقامی تمام تر ذمہ داران جو یہاں کے ہیں یا اطراف سے جوانی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے، اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو حاضرین موجود ہیں، معزز بزرگان ہیں، اس میں نوجوانان ہیں، عزیز بچے ہیں، اور اسی طرح سے مجلس کے اندر تشریف فرما ہماری قابل احترام مائیں اور بہن۔ آج کے اس اجلاس میں جس عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت۔ اصل میں یہ موضوع تو لمبا ہے یا لمبی گفتگو کا موضوع ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں جس پر حقیقت میں گفتگو ہونی چاہیے، اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت ایسے ہی مسلم ہے، اس کی افادیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی ضرورت مسلم ہے۔ لیکن جب حالات نازک ہو جائیں اور مدارس کے خلاف مختلف انداز سے، دائیں بائیں سے، مشرق مغرب سے، داخل سے، خارج سے، اپنوں سے، پرایوں کی طرف سے مہازرائی ہونے لگے، اس کی کردار کشی ہونے لگے، اسے مختلف انداز سے بدنام کیے جانے کا کام شروع ہو جائے، تو پھر یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی، اور اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار کرنا، لوگوں کو ہوش میں لانا، لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میں اس اجلاس کی مناسبت پر ذمہ داران کا اس اعتبار سے بھی شکر گزار ہوں، دیگر تمام تر پہلوؤں پر شکر گزاری کے ساتھ اس پہلو سے بھی خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
इदारे के इजलास के इस मुनासबत पर एक उन्वान का इंतखाब इस हवाले से भी किया कि दीनी मदारिस की अहमियत और जरूरत क्या है, दीनी मदारिस क्या है, उनकी अहमियत क्या है, उनका दीन इस्लाम के अंदर मकाम क्या है, और खुसूसियत के साथ वतन अजीज के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दीनी मदारिस का कितना अजीम शान किरदार है। इस हवाले से कुछ बातें करने का यह मौका है। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम तमाम लोगों को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां समझने की और फिर अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और इस सिलसिले में अगर किसी अंदाज की कोई गलत फहमी है या किसी भी तरह की शिकायत है तो उन गलत फहमियों का इजाला भी कर लिया जाए, उन शिकायतों को भी हल कर लिया जाए। लेकिन इस मिशन जो तालीम और तरबियत का मिशन है, जिसका असल मरकज मदारिस इस्लामिया है, जामियात हैं, मकातिब हैं और ऐसे ही छोटे बड़े जो इदारे चलते हैं, वो इसका सबसे बुनियादी मरकज है। इस मुल्क के अंदर खुसूसियत के साथ दीनी तालीम और तरबियत का अगर कोई सरचश्मा है, अगर कोई मरकज है, अगर कोई खजाना है, अगर कोई सोता है जहां से इल्म निकलता है, इल्म की मुख्तलिफ गोशे निकलते हैं, मुफस्सिरीन पैदा होते हैं, मुहद्दिसीन पैदा होते हैं, मुसन्निफीन बाहिसीन पैदा होते हैं, मुकर्रिरीन मुदर्रिसीन पैदा होते हैं, तो हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है। हम अपने उलमा को स्टेजों पर देखते हैं, दर्स के मसानिद पर देखते हैं, कलम के मुसन्निफीन को देखते हैं और बाहिसीन को देखते हैं, मुहक्किकीन को देखते हैं। हम देखते जरूर हैं, खुश भी होते हैं, उनसे फायदा भी उठाते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि ये आए कहां से हैं, इनका सरचश्मा क्या है, ये पैदा कहां से हुए, ये आखिर कहां से हमारे सामने आकर खड़े होते हैं और कहां से ये निकल रहे हैं, वो सोता कौन सा है, वो सरचश्मा कौन सा है, इसे हम कभी कभी फरामोश कर जाते हैं। इसके बहुत सारे वजूहात भी हैं, इसके बहुत सारे पहलू भी हैं, फरामोश करने के भी कई एक पहलू हैं, कभी कभी हम उसको महसूस भी नहीं करते। फरामोश करने के मज़ाहिर भी है, उसकी निशानियां भी है, ये सारे पहलू है जो गुफ्तगू करने से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन जाहिर है कि इन तमाम मौज़ूआत पर हम बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकते। मदारिस इस्लामिया की अहमियत दीन इस्लाम के अंदर और फिर वतन अजीज के अंदर क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें मजीद कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, मदारिस का आगाज उस वक्त से है जब से इस्लाम का आगाज है। मदारिस इस्लामिया की शुरुआत कब से है? जब से इस्लाम की शुरुआत है। इस्लामी मदारिस की, दीनी मदारिस की तारीख इस्लाम की तारीख से जुड़ी हुई है, बिल्कुल उससे दूर नहीं है। जब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपसे वो बात नहीं करना है अभी कि पढ़ने पढ़ाने, तालीम ताल्लुम, मदरसा, मकतब, इदारा, इसकी तारीख क्या है, इस पर बात नहीं करनी है। बात यहां से करनी है दीनी मदारिस, दीनी इदारे, इस्लामी जामियात, इस्लामी मकातिब, इसकी तारीख क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए और छोटा सा एक इस्लामी निजाम अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की साख मजबूत तर होती गई, तो उसकी जड़ जो थी वो सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था। यानी अल्लाह तबारक व तआला की घर का क़याम, मस्जिद कुबा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, मस्जिद नबवी का क़याम हुआ, और इसी के साथ साथ इसके बिल्कुल शाना बशाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का, तरबियत का भी मुनासिब इंतजाम फरमाया। आप इस बात को जानते हैं, कतातीब का जिक्र आता है, जिसको हम अपनी जबान में मकतब कहते हैं। मकतब उस तालीम को कहा जाता है जिसको आज हम इब्तिदाइया कह सकते हैं, या इब्तिदाइया से भी पहले का मरहला कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल आसानी के साथ अगर समझना चाहते हैं तो इब्तिदाइया कह लें, नर्सरी कह लें, इस तरह का नाम हम आप जदीद के हालात के एतबार से उसका दे सकते हैं। इसकी शुरुआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाई, तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बगल में, उससे मुत्तसिल, उसके पीछे की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सुफ़ा कायम किया था, जिसके साए में रह करके और जिसके चबूतरे पर बस करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम इल्म हासिल किया करते थे। ये वो इस्लामी मदरसे की तारीख की शुरुआत है जिसे हम सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। सुफ़ा के उस मदरसे के अंदर 100 के करीब तलबा पढ़ते थे, जिसमें बहुत सारे नाम है, उसका भी मौका नहीं है।
لیکن مشہور نام اگر آپ ایک دو لینا جانتے ہیں چاہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ اور اس میں بڑی تعداد فقراء کی تھی، بڑی تعداد نادار لوگوں کی تھی، بڑی تعداد مساکین کی تھی، جن کے پاس گھر نہیں تھا، رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، جن کے پاس مناسب کپڑا بھی نہیں تھا، جن کے پاس کوئی بیلنس نہیں تھا، جس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، جن کے پاس کوئی بزنس کاروبار یا کوئی جاب نہیں تھا، وہ پورے طور پر نیتتے تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے، آپ کی خلوت و جلوت میں اور آپ کے سفر و حضر میں رہ کر کے علم حاصل کریں ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس صفہ پر رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنت کا، آپ پر اترنے والی قرآن کریم کا، اس کی تشریح کا، اس کے بیان کا علم حاصل کریں۔ یہ بنیادی مقصد تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انہیں اضیاف الاسلام کہا جاتا تھا، اضیاف الاسلام، جس کو آسان لفظوں میں ضیوف الاسلام، حجاج کرام کو، معتمرین کو ضیوف الرحمن کے نام سے آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان۔ ان کو اسلام حدیث کے اندر، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثوں کے اندر اور دیگر حدیثوں کے اندر خود صحابہ کرام نے اضیاف الاسلام کہا ہے۔ یہ اسلام کے گیسٹ تھے، یہ اسلام کے مہمان تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے صفہ کی چبوترے پر اور اس کے سائے میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھتے تھے، آپ کے دروس کو سیکھتے تھے، آپ کے بیانات اور آپ کے فرمودات کا علم حاصل کرتے تھے، اسے ازبر کرتے تھے، اسے بائی ہارٹ کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، سناتے تھے۔ حالت یہ تھی ان کی ناداری کی حالت یہ تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی اگر کھانے پینے کا سامان آ جاتا، اگر وہ صدقے کی حیثیت سے آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شاگردان کو، جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، بلکہ بسا اوقات 100 کے قریب بھی پہنچتی ہے، ان صحابہ کرام، ان صفہ کے جامعہ، صفہ کے مدرسہ اور صفہ کے مؤسسہ تعلیمیہ اور صفہ کے پہلے تعلیمی مرکز میں پڑھنے والے ان طلبہ جو حضرات صحابہ کرام تھے، معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شاگردان آپ کے اجلہ صحابہ کرام تھے، مدرسہ صفہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پیچھے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ جب ان کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کی غذا اور خوراک کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ معلم بھی تھے، آپ مربی بھی تھے، آپ سرپرست بھی تھے، آپ ذمہ دار بھی تھے، آپ محسن بھی تھے، آپ ہمدرد بھی تھے۔ کوئی ایسی خوبی آپ کو نہیں ملے گی جو ایک کامیاب ترین مدرس کے اندر ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے امت تک نہ بھیج دیا ہو، نہ پہنچا دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، اگر صدقے میں دودھ آ جاتا، صدقے میں کھجور آ جاتی، صدقے میں کوئی پنیر یا مکھن آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر اسے حضرات صحابہ کرام صفہ کے ان طلبہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ کچھ کھا لیں اور ان کے جسم کے اندر رمق پیدا ہو جائے۔ اور اگر تحفے میں کوئی چیز آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کر لیا کرتے تھے، کچھ آپ استعمال کر لیتے تھے، کیونکہ آپ کے لیے صدقہ زکات تو حرام تھا، اس لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، آپ بھیج دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہدیہ آتا، تحفہ آتا، تو آپ کچھ اس میں استعمال کر لیتے، اور بقیہ بڑی مقدار جو ہوتی تھی وہ حضرات صحابہ کرام صفہ کے طلبہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مدارس اسلامیہ کی شروعات یہ اسلام کی شروعات کے ساتھ ساتھ ہے۔ جو ہی اسلامی نظام کا چھوٹا سا ایک سسٹم شروع ہوا، اسی وقت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اپنے شاگردان صحابہ کرام کی تعلیم کا، تربیت کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے والے وہ طلبہ، اور ان طلبہ کا جو منہج تھا، جو عقیدہ تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، اس مشن پر، اس سوچ پر، اس منہج پر، اس عقیدے پر جو بھی ادارے آج تک چل رہے ہیں، چھوٹے پیمانے پر ہوں، بڑے پیمانے پر ہوں، ہاسٹل کے ساتھ ہوں، بغیر ہاسٹل کے ساتھ ہوں، جیسے تیسے چلتے ہوں، چاہے وہ درختوں کے سائے میں چلتے ہوں، نہتے ہوں، نادار ہوں، جیسے بھی چلتے ہوں، اگر وہی مشن، وہی عقیدہ، وہی سوچ، وہی تعلیم جو دینے کے لیے نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को सुफ़ा पर जमा किया था और नादार सहाबे किराम आकर के इल्म हासिल किया करते थे। जिनके पास खेती बाड़ी थी वो खेती बाड़ी करते थे, उसमें से वक्त निकाल करके इल्म हासिल करते थे। जिनके पास कारोबार था वो कारोबार से वक्त निकाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया करते थे। लेकिन ये तलबा मदरसे के तलबा थे, ये सुफ़ा की जामिया के तलबा थे, ये सुफ़ा के मकतब के तलबा थे, जो खुसूसियत के साथ फारिग होकर के फ्री होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। मेरे भाइयों, ये सहाबे किराम थे। यहां से मदारिस इस्लामिया की शुरुआत होती है। तो जितने इदारे क़यामत तक कायम होंगे इसी हदफ और मिशन के साथ, वो सब के सब उसी सुफ़ा की जामिया और सुफ़ा के मदरसे का इम्तिदाद होंगे, उसी तसलसल की कड़ियां होंगी, जिसकी एक कड़ी ये भी है जिसमें आज और या जिसके इजलास में, सालाना इजलास में हम और आप सबके सब हाजिर हुए हैं। ये शर्फ की बात है हमारे लिए, सादत की बात है, और तलबा की जहां हौसला अफजाई है वहां हमारे लिए भी सादत की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दीनी मदारिस के इजलास में, तलबा की हौसला अफजाई के इजलास में, या ऐसे ही तलबा को इनाम देने, उनकी तकरीम करने या उन्हें शहादात से नवाजने, उनकी हौसला अफजाई करने का कोई भी तरीका हो, इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत से हकीकत यह है कि दिल में बेइंतहा खुशी होती है। क्योंकि मसला क्या है, आज ये बच्चे छोटे हैं, 5 साल 10 साल 8 साल या उससे ज्यादा, 12 साल 14 साल 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। ये आज बच्चे जरूर हैं, लेकिन यही मुस्तकबिल के मुदर्रिस हैं, यही मुस्तकबिल के खुतबा हैं, यही मुस्तकबिल के मुहक्किकीन हैं, यही मुस्तकबिल में उम्मत को तौहीद और सुन्नत की तालीम देने वाले, यही मुस्तकबिल में उम्मत को इल्हाद से, बिदअत से, बेरारवी से, इनहिराफात से बचाने का मिशन उठाने वाले, यही मदारिस के मसानिद पर मुदर्रिस बनेंगे, यही हमारे स्टेजों के मुकर्रिर बनेंगे, यही हमारे मिंबरों के खुतबा बनेंगे, यही मुसन्निफीन और बाहिसीन बनेंगे, यही मेरे भाइयों मुहक्किकीन बनेंगे। आज बड़ी तादाद हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की मौजूद है। ये हमारे असातिज़ा ही नहीं, हमारे साथी ही नहीं है, हमारे जूनियर सीनियर ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारे असातिज़ा हैं, बल्कि हमारे असातिज़ा के असातिज़ा हैं। कोई जरा पता लगा करके देखे कि इन पहाड़ जैसे उलमाए किराम की तालीम कहां से हुई, इन्होंने कहां से इल्म हासिल किया है। इन सब का अगर कोई मादरे इल्मी है तो यही दीनी मदारिस हैं, जिन्होंने तौहीद का इल्म सिखाया, सुन्नत का इल्म सिखाया। ये बड़े बड़े मुसन्निफीन भी हैं, बड़े बड़े बाहिसीन हैं, और जमात के सरी खैल की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, मुल्क में और दुनिया में जाने जाते हैं। ये मदारिस इस्लामिया की अहमियत का एक पहलू है जो मैं आपके सामने सरसरी तौर पर जिक्र कर रहा था। रही बात थोड़ी सी फजीलत के हवाले से या जिम्मेदारी के हवाले से, तो अल्लाह के कलाम की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो मकान, और आयत करीमा का जो पस मंजर है ना मेरे भाइयों, वो पस मंजर जो है वो जिहाद का पस मंजर है। इसका पस मंजर है जिहाद, दंगे और फसाद का पस मंजर नहीं है, जिहाद का, वो जिहाद जो जिहाद इस्लामी है, जो जिहाद शरई है, जो जिहाद इलाए कलिमतुल्लाह के लिए होता है, जिसमें दंगा नहीं होता, जिसमें फसाद नहीं होता, जिसमें मासूमों की जान नहीं ली जाती, जिसमें किसी के माल को तबाह नहीं किया जाता, जिसमें किसी की इज्जत आबरू से खेला नहीं जाता, वो मुकद्दस जिहाद जिन्हें अपनों और परायों की नादानी ने बदनाम करके रख दिया है। आज इस लफ्ज को जबान पर लाते हुए भी एक खतीब को डर लगती है कि न जाने ये लफ्ज कान में किसी के पड़े तो वो चौंक जाए कि किस मौजूद पर बात हो रही है। कोई दंगे के लिए उभार तो नहीं रहा, कोई फसाद फैलाने के लिए किसी को आमादा तो नहीं कर रहा। ये सूरत हाल बन गई है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिहाद के पस मंजर में आयत करीमा उतरी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, मुसलमानों को, ईमान वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब के सब इकट्ठा होकर के अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करने के लिए निकल जाएं। सब के सब जिहाद के लिए ना निकले, मैदानी जिहाद के लिए सब के सब ना निकले, बल्कि क्या करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, बल्कि होना ये चाहिए, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी तादाद है, इसमें अगर एक अच्छी खासी तादाद मैदानी कारजार के लिए निकलती है तो एक जमात अपने आप को फारिग करके इल्म हासिल करने में लगाए। फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा, ताइफा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिरके से एक ताइफा निकलना चाहिए, बड़े धड़े से, बड़ी जमात से, बड़ी तादाद से एक छोटी सी तादाद निकलनी चाहिए। लियतफक्कहू फिद्दीन,
ताकि वो दीन का इल्म हासिल करें। दीन का इल्म हासिल करने के लिए एक जमात फारिगुल बाल होनी चाहिए जो दीन का इल्म हासिल करें। और ये आयत करीमा का टुकड़ा याद रखना। मैं आपसे आखिर में बात करना चाहूंगा कि आखिर मदारिस इस्लामिया का रुख जो बदलता चला जा रहा है, बदला जा रहा है, बहुत सारी सोच उसके पीछे कार फरमा है। ये आयत करीमा का टुकड़ा अगर हमने इसे फरामोश कर दिया, अगर हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे हमने गोल मोल समझ करके बात आगे बढ़ा दी, तो फिर मैं समझता हूं कि मदारिस इस्लामिया पर यह गुफ्तगू किसी काम की बाकी नहीं बचेगी। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिहाद के लिए सब नहीं निकल जाएं, बल्कि होना यह चाहिए कि बड़ी तादाद में से कुछ लोग क्या करें, कुछ लोग अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकले। अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए तफक्कुह का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये असल में फहम से कहीं ज्यादा गहरा माना रखती। गहरा इल्म हासिल करने के लिए, तखस्सुस करने के लिए, फारिगुल बाल होकर के हदीस की बारीकियां, तफसीर की बारीकियां, अकीदे की बारीकियां, मनहज की सुन्नत की बारीकियां, सरफ़े उम्मत की जिंदगी की बारीकियां तो सीखें, इस काम के लिए फारिगुल बाल होना चाहिए। आप सोचिए, जिहाद के मुकाबले में एक टीम को निकलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तो फिर ये मिलते जुलते कामों के लिए तो ये हुक्म नहीं है। ये बहुत कुछ को मिलते जुलते, बहुत सारी चीजों को लेकर के चलने वाला मिशन नहीं है। जिहाद के अंदर कुछ लोगों को लाजिमन अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलना चाहिए। आगे मिशन क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहतरून। और होना ये चाहिए कि ये लोग इल्म हासिल करें, इल्म की दौलत से, नेमत से माला माल हो जाए, और उसके बाद इल्म की दौलत से लैस होकर के ये जब वापस पहुंचे, अपने घर में आए, अपने कबीले में आए, अपनी कौम में आए, किसी मुल्क और खित्ते में आए या जाए, उनको चाहिए कि क्या करें वो वलियुनज़िरू कौमहुम, उन्हें डराएं, उन्हें आगाह करें, उन्हें चौकन्ना करें, शिर्क से डराएं, बिदात से डराएं, इन्हिराफात से डराएं, इल्हाद से डराएं, हराम कामों से डराएं, मुनकरात से डराएं, वक्त और हालात की फितनों से आगाह करें। लअल्लहुम यहज़रून, उम्मीद है कि ये जरूर बचेंगे, जरूर अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, हर तरह की मुनकरात से बचाएंगे। ये आयत करीमा मदारिस इस्लामिया की बुनियाद समझाने के लिए बहुत बुनियादी आयत करीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें भी हैं, मैं उनमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वक्त की किल्लत का मसला भी है और मुझे कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है मेरे भाइयों, माजरत के साथ। लेकिन एक दो हदीसों का तज़किरा करना मुनासिब होगा। वो हदीसें आप जानते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी पादाश में, उसके नतीजे में अपने फज़ल करम से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है और यही वो फलसफा भी भस्म हो जाता है, यही वो फलसफा भी दफन हो जाता है जब इल्म के नाम पर दीन और दुनिया के इल्म की तफरीक खत्म करने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो इल्म के रास्ते में चलता है उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान होता है। अगर ये दीन और दुनिया की तालीम का फलसफा अगर कोई लाएगा और ये साबित करेगा कि दीन और दुनिया की तालीम का, ये दीन और दुनिया की तालीम इसकी तफरीक करना सही नहीं है, तो फिर मुझे सवाल करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला फरमाता है जो इल्म का रास्ता चलेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। मुझे बताओ, ज्योग्राफी का इल्म हासिल करने के लिए कोई जाएगा तो जन्नत का रास्ता आसान होगा? साइंस का इल्म हासिल करने जाओगे तो क्या आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान होगा? कोई आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, पेट्रोल डीजल मैकेनिक बने, क्या उस इल्म के लिए निकलने वाला जन्नत के रास्ते पर चलेगा? क्यों खल्त मल्त करते हो मेरे भाइयों? अल्लाह वास्ते पूरे कुरान करीम के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर, सलफ़े उम्मत की सीरत के अंदर जहां जहां इल्म का तज़किरा आया है, इल्म की फजीलत, उलमा की फजीलत, तालीम का मकाम बयान किया गया है, और उन सब से मुराद अल्लाह के दीन का इल्म है, कुरान का, सुन्नत का इल्म है, हलाल और हराम का इल्म है, फिक्र का इल्म है, सबसे पहले अकीदे का इल्म है। ये सारा इल्म मुराद है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल मोहसिन बिन हमद अल अब्बाद हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, इस वक्त शायद दुनिया के सबसे बड़े हदीस के आलिम हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा जहां जहां इल्म की फजीलत है, उलमा का मकाम है, तालीम का मकाम बयान किया गया, उससे मुराद दीन का इल्म है, उससे मुराद कुरान का, सुन्नत का, फिक्र का, अकीदे का, शरीयत का इल्म। कोई खल्त मल्त करने की कोशिश ना करे। याद रखो, ये इल्म इबादत है,
یہ علم عبادت ہے جو قرآن کا سنت کا علم ہے، اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی مسجدنا ھذا، جو ہماری اس مسجد میں آئے، جو ہماری اس مسجد میں مسجد نبوی میں آئے، اور آئے تو کس لیے آئے؟ سننا غور سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرید الا ان یتعلم شیئا او یعلم احدا او یعلم شیئا غیرہ، اسی لیے آئے کہ علم حاصل کرے یا لوگوں کو علم سکھائے، دو کے سوا کوئی مقصد نہ ہو، یا تو خود علم حاصل کرنے کے لیے آئے یا لوگوں کو علم پہنچانے کے لیے آئے، تعلیم کے لیے آئے، تعلم کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کی حیثیت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج یطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، مدارس میں جائے، جامعات میں جائے، اداروں میں جائے، میرے بھائیوں جا کر کے علم حاصل کرنا چاہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اسے بھی یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں وہ فی سبیل اللہ ہے، حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہی شمار کیا جائے گا یہاں تک کہ علم حاصل کر کے گھر واپس لوٹ آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کا مجاہد مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر علم دین کا جو مسئلہ ہے، مدارس، مکاتب، جامعات اور دیگر اسلامی تعلیمات کے جو مؤسسات اور سیٹ اپ ہیں، یہ سب کا سب اصل میں دین اسلام کی بقا کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ یاد رکھنا، ہم اپنے ملک وطن کی اگر بات کریں تو یاد رکھیں اس ملک کے اندر ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے دینی مدارس کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر آپ اس کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہو تو تاریخ اہل حدیث ہند کا مطالعہ کریں۔ ہمارے علماء نے تاریخ لکھی، ہندوستان کی تاریخ میں مدرسین، ہندوستان کی تاریخ میں مقررین، ہندوستان کی تاریخ میں مصنفین، باحثین، لمبی تاریخ ہے، جلدوں میں کتابیں لکھی گئی۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ جو ملت کو ملا، کہاں سے ملا؟ کوئی بتائے ذرا۔ کیا کوئی تحقیق کرنے کا ادارہ ہے؟ کیا کوئی تصنیف سکھانے والا ہے؟ کیا کوئی تقریر سکھانے والا ہے؟ کیا کوئی عربی الگ سے سکھانے والا ہے؟ سارا مرکز اگر کچھ ہے تو یہی دینی مدارس ہیں، جہاں سے ہمارے علماء ہر طرح کے علم سے لیس ہو کر کے امت کو اپنے علم سے روشنی پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس موقع پر مجھے ایک دو باتیں بڑی بنیادی کرنی ہے، اور اس کے بعد کچھ باتیں خلاصے کی آپ کے سامنے کرنی اس حوالے سے کہ ان مدارس کی اہمیت اور ضرورت اگر ہے تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کی حفاظت معنوی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی حفاظت ظاہری کیسے ہو سکتی ہے۔ اس پر میں 2-3 نقطوں پر 4 نقطوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کہ ہمارا یہ ملک وطن عزیز، جہاں بہت سارے ادیان اور مذاہب کا یہ مرکز ہے، وہی اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے فرقوں کا بھی، بہت سارے مکاتب فکر کا بھی مرکز ہے۔ یہاں مختلف افکار، نظریات، اہداف، سوچ، جمعیات، اس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ہم اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر عقیدے کا بگاڑ کتنا ہے، بدعات کتنی ہیں، انحرافات کتنا ہے، شرک کتنا ہے، خرافات کتنی ہے، انحرافات اخلاقی کتنی ہے، حرام و حلال کا مسئلہ کتنا نازک ہے، بد اخلاقی کا مسئلہ کتنا نازک ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ بھی کارنامے آپ کو پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو مل رہے ہیں، یا بڑی تعداد ہمارے اہل علم کی آج ہمارے بیچ میں موجود ہے، یا ماضی میں ہم سے رخصت ہو چکی ہے، یا ابھی یہ طلبہ جو آگے تیار ہو رہے ہیں، ان سب کو جو ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں اس ملک میں عقیدے کا جو عقیدے کی اصلاح کا جو کارنامہ ہے، ان مدارس اسلامیہ کا کارنامہ ہے، اس ملک کے اندر جو بدعقیدگی کے علاوہ بد اخلاقی، حرام و حلال کی تمیز ختم کرنے کا جو فساد اور فتنہ تھا، الحاد کا حملہ، بے دینی کا حملہ، داخلی فتنے، خارجی فتنے، آپ اپنوں کے پرائیوں کے، ان سارے فتنوں سے اگر کسی نے نبردآسماں ہونے کا بیڑا اٹھایا تو اس ملک کے وہ سچے علماء ہیں جنہوں نے دینی مدارس سے کسب فیض کیا اور علم کی روشنی سے اپنے آپ کو نور کیا اور اس مشن کو آگے لے کر کے بڑھے۔ آج اتنی بڑی تعداد ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں
सैकड़ों की तादाद में हमारे मदारिस हैं। मुल्क के तूल अर्ज में मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक जो तीन मदारिस का, मदारिस अहले हदीस का जो जाल बिछा हुआ है, याद रखें ये वो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देने का मरकज है जिसके जरिए से इस मुल्क के अंदर अकीदे की इस्लाह हुई है, अखलाक की इस्लाह हुई है, किरदार की इस्लाह हुई है, हर पहलू पर जो इस्लाह का काम हुआ है। इसके पीछे अगर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नाम लिए जाने के काबिल है इस मिशन में हिस्सेदारी के लिए, तो हमारे असलाफ के कायम किए हुए मदारिस हैं। आज भी जो मदारिस इस्लामिया का क़याम किए हुए हमारे उलमा हैं, इनकी कोशिशें, इनकी कुर्बानियां, बहुत सारे दाखिली खारजी मुश्किलात, इन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए जो मदारिस इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूं एक इदारे के प्रोग्राम में हम शरीक हैं जो आपके सिरसी का तारीखी इदारा, अभी मैं नाजिम साहब और अमीर मुहतरम की ज़बानी सुन रहा था, तकरीबन 100 साल इस इदारे को हो रहे हैं। बड़ी खुशाइंद बात है। अल्लाह ताला मजीद तरक्की की तौफीक अता फरमाए। कमियों को, खामियों को भूल जाओ, नए आज़म के साथ नया काम करने को सोचो। ये पुरानी यादें, जो पुरानी चीजें हैं, इसके पीछे वो पड़ते हैं जो काम नहीं करना चाहते। जो काम करना चाहते हैं वो माजी को भुलाकर नए आज़म से आगे बढ़ने की बात करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, और इस मंच के ऊपर मुल्क का एक अजीम शान इदारा दिल्ली के अंदर कायम है, उसके सदर मोहतरम यहां पर मौजूद है, और आपके जुनूब की बस्ती में एक अजीम शान इदारा बनात का भी कायम है जिसके सरप्रस्त नाजिम अमीर मोहतरम कर्नाटक और गोवा के शेख अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं। मेरे भाइयों, इस मौके पर यह मसला समझना बड़ा आसान है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, इसमें कोई उलझन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये इदारे कितना अजीम शान किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है मेरे भाइयों, वो ये है इन मदारिस इस्लामिया के खिलाफ होने वाले बहुत सारे महाज, और ये महाज दाखिली भी, ये महाज खारजी भी है। मैं बहुत ज्यादा लंबा तबसरा नहीं करना चाहता, और ये नहीं सोचता, ये नहीं चाहता कि ये बातें मेरी कुछ सियासी अंदाज की बन जाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ बतौर इशारा कुछ बातें कहना चाहता हूं, और इशारा अक्लमंदों के लिए काफी होता है। आप समझ सकते हैं मुल्क के हालात कैसे हैं। इस्लाम के खिलाफ, मदारिस इस्लामिया के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, इस्लामी मुअस्ससात के खिलाफ, इस्लामी मुक़द्दसात के खिलाफ क्या कुछ सूरत हाल बनती चली जा रही। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे जबरदस्त होने की हिम्मत अता फरमाए और अपने फजल करम से, अपनी खुसूसी नुसरत से नवाजे कि ये मिशन हमेशा हमेशा कायम रहे। हर तरह के हालात आए जाएं, बदलें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे अपने फजल करम से दवाम अता फरमाए, पायदारी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इसे कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस मिशन पर लगे हुए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी रास्तों में आने वाली मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसके बाद जो मसला है वो मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे भी मसाइल हैं जिनकी वजह से मदारिस तो मौजूद हैं लेकिन मदारिस अंदर से खोखले हो रहे। और बहुत माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे माफ कर देना, हो सकता है कोई बात जरा ज्यादा हो जाए और आप नाराज हो जाएं, लेकिन दरगुजर कर देना, मसले को समझ लेना। मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं, इन मदारिस की हिफाजत का मतलब इन दरो दीवार की हिफाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जाहिरी हिफाजत नहीं है। इसकी जाहिरी हिफाजत से ज्यादा अहम मसला उसकी मानवी हिफाजत का है। मेरे भाइयों, अगर हमने इन मदारिस की मानवीयत को खोखला कर दिया तो ये दरो दीवार के सिवा और स्ट्रक्चर के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेंगे। और छोटा मोटा जो काम चलता है मानवीयत के साथ चले, इस्तेहकाम के साथ चले, सही अकीदे की तालीम हो, सही सुन्नत की तालीम हो, सही मनहज की तालीम हो, शिर्क की तरदीद की जाए, बिदात की बेखुदी की जाए, इल्हाद और बेदीनी का खात्मा किया जाए। हमारे नौजवान, हमारे नौनिहाल बच्चे इस दौर में जिस तरह के नए नए फितनों से दो चार हो रहे हैं, मीडिया के रास्ते से बहुत सारे फितनों ने घेर रखा है। इन फितनों से जबरदस्त होने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमें बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन मदारिस की मानवी हिफाजत करना इनकी जाहिरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। मेरे भाइयों, यहां तादाद हमने सुना छोटी तादाद है, अभी हमारे मशाइख के खिताबात से अंदाजा हुआ कि तादाद ज्यादा नहीं है,
कोई बात नहीं है, तादाद अगर कम भी है तो क्या हुआ, मानवियत मजबूत रखो, असालत मजबूत रखो। ये 10-100 पर भारी हो जाएंगे, 100,000 पर भारी हो जाएंगे। जरूरी है कि जो निकले आपके इदारों से वो जौहर बन करके निकले, जो निकले वो कुंदन बन करके निकले, वो दुनिया का रुख मोड़ने की ताकत रखे। शिर्क और बिदात के खिलाफ मेरे भाइयों पूरे तौर पर आप पूरे तौर पर तैयार होकर के निकले और मैदान अमल में उतरे तो मेरे भाइयों पूरे आज़म के साथ उतरे। किसी तरह का लाग लपेट ना हो, किसी तरह की बुज़दिली ना हो, किसी तरह की इसके समझौते का मसला ना हो। और जिस तरह के हालात आज हमें और आपको देखने सुनने को मिलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस रंग से बचने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि मानवी हिफाजत में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम ये तो कह सकते हैं हालात ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए, लेकिन हम जो जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं उसका ठेकरा या उसमें कोताही का जिम्मेदार हम किसको बनाएंगे? मेरे भाइयों अपनी जिम्मेदारी अदा करो। कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी जिम्मेदार है। हर जिम्मेदार से अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करना जरूरी है। वो ट्रस्ट के लोग, वो मैनेजमेंट के लोग, वो सोसाइटी के लोग, वो फाइनेंस करने वाले हो, वो उलमा हो, वो मोसिसीन हो, बानियात हो, मुदर्रिसीन हो, उसके खुद्दाम हो, सबको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और ये मिशन रिवायत के तौर पर ना चले, जिम्मेदारी के साथ चले, मिशन की तरह से चले। हमारा ये मुकद्दस मिशन तालीम का, तरबियत का मदारिस से इबारत है। इन मदारिस के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई बात मनफी नहीं होनी चाहिए। लोग जो है थोड़ी थोड़ी कमियों कोताहियों को लेकर के पूरे तौर पर मनफी बात करते हैं, नुकसान पहुंचाने का नतीजा निकलता है। खबरदार, इस तरह की जुर्रत करने को अगर किसी ने जुर्रत करने की कोशिश की तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के यहां जवाबदेही सख्त हो जाएगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इन मदारिस के इन बोसीदा चटाइयों पर बैठने वालों को ना देखो और उनके अजीम किरदार को देखो, इसके स्ट्रक्चर के बोसीदगी को ना देखो, बल्कि इसकी टाट को ना देखो, इसके मामूली निजाम को ना देखो, बल्कि इसके मिशन की आजमत को देखो मेरे भाइयों। और मैं ज्यादा बात तो नहीं करना चाहता, मैं आपसे वो इशारा सिर्फ कर देना चाहता हूं, वो इशारा जो अल्लामा इकबाल ने कभी बयान किया था जब वो यूरोप का सफर करके आए थे, सब जानते हैं। इशारा करना चाहता हूं, जब वो वापस आए थे, लौटे थे, तो उन्होंने वहां का रंग देखा था और रंग देख करके क्या कहा था ये छोटे छोटे मकतब जो है ना, बोसीदा चटाइयों पर बैठने वाले बच्चे और उलमा, इनको हकीर ना समझो, इन मदारिस की तनकीस ना करो। अगर तुमने इसकी कदरदानी न की तो अल्लाह की कसम है जो हाशर होगा, जो नतीजा निकलेगा, वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं यूरोप में देख करके आ चुका हूं क्या हाल है, कैसा इल्हाद है, कैसी बेदीनी है, कैसा कुफ्र और शिर्क है, कैसी आवारगी है, कैसी बदअखलाकी है, कैसी गिरावट है। मैं अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा करके आ रहा हूं। याद रखो 800 साला गरनाता की, उंदुरुस की और हमरा की तारीख हमारे सामने है। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कुछ नहीं बाकी बचा, सिर्फ वो खंडरात बाकी बचे हैं बस। और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी अगर तुमने इन मदारिस की कीमत को ना समझा, इन इदारों की कीमत को ना समझा, तो 800 साल इस मुल्क में हुकूमत करने वाले सिर्फ और सिर्फ ताजमहल और लाल किला के सिवा किसी और हवाले की, कोई और हवाला देने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। याद रखो मुसलमानों, अहले हदीसों, अपने आप को, अपने मनसब को, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मदारिस के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा कर दिया गया है, महाज खड़ा कर दिया गया है। मदारिस ईमान की हिफाजत, अमल की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, अखलाक की हिफाजत, समाज की हिफाजत, अमन और शांति की जमानत है। ये दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है, बर्बरियत का अड्डा नहीं है। यहां टूटी चटाइयों पर अमन की तालीम दी जाती है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मीठी तालीमात, वो अजीम तालीमात जिनके जरिए से दुनिया में इनकलाब आ गया था, वो तालीम दी जाती है। कोई जुल्म नहीं, कोई बर्बरियत नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं, ऐसी किसी बात की तालीम नहीं दी जाती। ये मदारिस अमन का गहवारा है, ये मदारिस शांति का मरकज है।
गलत फहमियां हो सकती हैं, सच्चाई इसके खिलाफ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, किसी की छोटी गलती, किसी की निजी गलती, इनफरादी गलती को किसी मिशन से न जोड़ो, इदारे से न जोड़ो, जमात से न जोड़ो, बल्कि वो उसकी निजी गलती हो सकती है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए, उसे तौबा करने की और अपनी जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज ही कर रहा था कि अगर वो हालत जो आज धीरे धीरे देखने को मिलती है, वो हालत अगर आ गई तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, बड़े मसाइल खड़े होंगे। मैं इख्तिसार के साथ में 2-3-4 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि कुछ निकात की शक्ल में आपके सामने बात करूं तो शायद ये बात ज्यादा आसानी के साथ आपके समझ में आ सकती है, और ये मसला बड़ी आसानी के साथ हम और आप समझ करके यहां से जा भी सकते हैं। याद रखो, ये मदरसा जो होता है, जो जामिया होता है, इसका मिशन बड़ा अजीम है। इस मिशन की अजमत के एतबार से हमारी जिम्मेदारियां अजीम हैं, हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। इसलिए इस मिशन की अजमत को कभी भी नजरअंदाज न करना। मुसलमानों, मैं आपके सामने वो अर्ज कर देना चाहता हूं। बहरहाल वो बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक सरसरी तौर पर एक बात जिक्र करके मैं वो निकात जो 2-3 बातें हैं मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज जो मदारिस के अंदर वक्त की रियायत, हालात का तकाजा, इस तरह के जो मसाइल आ रहे हैं, इस नाम पर मदारिस के अंदर असरी उलूम, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस और दीगर सारे असरी सब्जेक्ट को दाखिल करने की मजबूरी अलग चीज है। दाखिल करने की मजबूरी अलग चीज है। हालात बन जाए, जरूरत हो जाए, तकाजा हो जाए और इस्तरारी सूरत बन जाए तो अज़्ज़रूरातु तुक़द्दरु बिक़दरिहा, जितनी जरूरत हो उतना ही बस। लेकिन अगर हमने ये फिजा बनाने की कोशिश कर ली कि भाई मदारिस को तो दीनी और शरई उलूम के लिए इस दौर में खास करना अच्छा नहीं है, बल्कि इसको ऐसा सिलेबस बनाया जाए कि तालिबे इल्म पढ़े, उसके अंदर मदारिस शरीयत इस्लामिया के सारे उलूम भी हों, उसके अंदर असरी उलूम के सारे सब्जेक्ट हों, 10 सब्जेक्ट शरीयत के, 10 सब्जेक्ट असरी उलूम के भी रहे। एक तालिबे इल्म 5वीं जमात, 6ठी जमात आलिमियत फजीलत तक पहुंचे तो उसके बाद उसे जो ट्रैक पकड़ना हो पकड़ सकता है। वो चाहे आलिम बन करके रहे, वो चाहे मुदर्रिस बन करके रहे, चाहे वो खतीब बन करके रहे, और उसका दिल चाहे तो दुनिया की डिग्रियां ले, वो ग्रेजुएशन करे, एमए करे, दुनिया की आला तालीम हासिल करके दुनिया में तरक्की करे। याद रखो, मजबूरी जहां तक है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये फिजा बनाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं भाई, मदारिस को दीनी तालीम की हद तक खास रखना अच्छा नहीं है, बल्कि इसको किसी भी तरह से इक्वल करने की कोशिश करो, बराबर बराबर करने की कोशिश करो, ताकि दुनिया में भी बच्चा तरक्की करे, आखिरत में भी तरक्की करे। मैं आपको ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कुरान करीम की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें एक नहीं दसियों की तादाद में है। जहां दीन और दुनिया आपके सामने आ जाएंगे, वहां दीन को नहीं, दुनिया को तरजीह इंसान देने के लिए तैयार हो जाता है। जहां आपके सामने दीन का भी रास्ता है, दुनिया का भी रास्ता है, इंसान दीन को छोड़ करके दुनिया की तरफ माइल होता है। इसीलिए बड़ी तादाद में ये तो देखने को मिल रहा है कि वो उलमा, वो तलबा, वो मदारिस के खर्रीजीन और फारिगीन जिन्होंने मदारिस से इल्म हासिल किया है, लेकिन उनके पास दुनिया की तरफ भी डिग्रियां हासिल करने के रास्ते खुले हुए थे, हर तरह से रास्ता खुला हुआ था। वो मदरसों से निकले तो मिंबर के ना हुए, मदरसों के मुदर्रिस न बने, वो मिंबर के खतीब न बने, वो मुसन्निफ और बाहिस न बने, वो मुअल्लिम न बने, बल्कि वो दुनिया की डिग्रियां लेकर के दुनियादार हो गए। और इतना ही अगर होता तो भी कोई बात न थी, मामला इससे कहीं आगे चला गया। वही लोग मदारिस के खिलाफ महाज खड़ा करने लगे, मदारिस की नाकदरी करने लगे, मदारिस के खिलाफ महाज उठाया, मदारिस के उलमा के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, मुदर्रिसीन, खुतबा, मुकर्रिरीन के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, मदारिस में कीड़े निकालना शुरू कर दिया, उलमाए किराम के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। ये बड़ा खतरनाक मसला है। तो अज़्ज़रूरातु तुक़द्दरु बिक़दरिहा, अगर जरूरत है, इस्तरार है, तो आप उसी एतबार से उतनी गुंजाइश रखें, बस ये जहन न बनाएं। मेरे भाइयों, अगर कोई कहता है इसमें क्या हर्ज की बात है कि अगर दीन के साथ दुनिया मिले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदारिस की बात करते हो, मुल्क के अंदर, इसके शिमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब के अंदर कॉलेज कितने हैं मेरे भाइयों, यूनिवर्सिटीज कितनी है?
असरी उलूम के मराकिज कितने हैं? कितनी बार आपने सोचा कि इन कॉलेजों में शरीयत के उलूम भी दाखिल करना चाहिए, इन कॉलेज में अकीदा भी पढ़ाया जाना चाहिए, इन कॉलेज में तौहीद भी पढ़ाई जाए, तफसीर भी पढ़ाई जाए, हदीस भी पढ़ाई जाए, कुछ सीरत भी पढ़ाई जाए। कितनी बार आपने सोचा इन जामियात के अंदर जहां असरी उलूम की तालीम होती है, इन जामियात के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर दीन की तालीम कितनी होनी चाहिए? कुछ होनी चाहिए। इसके लिए आपने कभी सोचा या नहीं सोचा? मदारिस अल्लाह के दीन की हिफाजत का जामिन है। इस मदारिस की हिफाजत इस्लाम की हिफाजत है। मदारिस की हिफाजत अकीदे तौहीद की सुन्नत की हिफाजत है। इन मदारिस को जो इसी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाने और करने की तौफीक अता फरमाई है, इसको तुम मिक्स करके कमजोर करना चाहते हो। मदारिस में असली तालीम चाहिए ये तो कहते हो, लेकिन असरी उलूम के इदारों में, असरी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस के अंदर दीन की शरीयत की तालीम होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जबान क्यों नहीं खुलती? क्या चाहते हो? जो सिसकती बिलकती सूरत हाल है मदारिस, इसे भी मानवी तौर पर खोखला कर देना चाहते हो। गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये उलमा जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने खालिस दीन इस्लाम के उलूम का इल्म हासिल किया है, इसलिए तखस्सुस है, स्पेशलिटी है, हदीस का, तफसीर का, अकीदे का आपको मुतखस्सिस मिलता है, आप रुजू कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो ये मसला बड़ा नाजुक है और हालत जार क्या हो रही, इसी मगरिब की नक्काली की वजह से वो सारा मंजर आपके सामने आ जाता है यूं। और किसी ने कहा था ना, अकबर इलाहाबादी ने, गालिबन मुझे ज्यादा इल्म नहीं है शेर शायरी का, लेकिन कहा था, ये शेर मशहूर है कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। आज जो कॉलेज की फिजा है, कॉलेज की फिजा नक्द करते हुए अकबर इलाहाबादी ने गालिबन कहा था, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज के न सूझी। अगर फिरौन ने कॉलेज खोल लिया होता तो बिला वजह कातिल है, कातिल है, कातिल है, सफाक है, इस बदनामी से तो कम बच जाता। इसके जरिए न जाने क्या क्या हो रहा है मेरे भाइयों, उन सब पर तबसरा करने का मौका नहीं है। इल्हाद फैल रहा है इन्हीं कॉलेजों के जरिए से, और मेरे भाइयों, जॉब सर्कल की वजह से आज इर्तिदाद की लहर चल रही। किसकी लहर है ये? इर्तिदाद की लहर। लड़के मुर्तद हो रहे गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, लड़कियां मुर्तद हो रही है गैर मुस्लिम लड़कों के साथ। कॉलेज का बड़ा दखल है और जॉब सर्कल का बहुत बड़ा दखल है और दीगर बहुत सारे असबाब भी है मेरे भाइयों। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता था, जो इल्म जो तालीम आपको अल्लाह से न जोड़े, उस तालीम की कोई कीमत नहीं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। बातिल के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। बज़मी ने कहा था, राजस्थान के एक शायर ने, उसके अकीदे से भी कोई मतलब नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन ये पैगाम समझना अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए। और हालत ये है कि आज ये मिक्सिंग और मिंगलिंग के नतीजे में रवादारी के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर, और बहुत ज्यादा अपडेट होना चाहिए इस नाम पर, जो शरई और असरी का मुकम्मल बराबर का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, इसका भी अंजाम बड़ा खतरनाक है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, आखिरी बात कहकर के मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि 2-3 मिनट 4 मिनट बाकी बचे और मैं इस मुख्तसर वक्त में यही 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको इन आखिरी निकात पर खुसूसियत के साथ गौर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 5 निकात जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, 4 निकात है या गालिबन 5 निकात है, मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं। इसमें सबसे जो पहली बात है वो ये है, इन मदारिस के अंदर, और अभी बहुत सारी बातें हुई है हमारे इस दारुल हदीस अरबिया सलफिया और सिरसी के मदरसे के बारे में, और सुबह से सिलसिला इसी से मुताल्लिक चल रहा है, इसके मुख्तलिफ कोशों पर गुफ्तगू हो रही है। इस पस मंजर में और पूरे मुल्क के मदारिस के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये 2-3 बातें हकीर जबान के साथ अर्ज करना चाहता हूं। बहैसियत तालिब इल्म ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना नजरअंदाज कर देना और रद्दी की टोकरी में डाल देना, और अगर मुफीद होगी तो इसे बरूए कार लाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों,
इन मदारिस की हमें तो जरूरत के बाद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पर मैं बात कर रहा था कि मानवी हिफाजत भी जरूरी है और इसकी मादी और जाहिरी हिफाजत भी जरूरी है। इस हवाले से सबसे पहली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देखें मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम यहां बच्चों पर फीस है कि नहीं फीस है, आम बात करना चाहता हूं। मदारिस के अंदर बहुत सारे हालात की तब्दीलियों की वजह से बहुत सारे इदारे, छोटे बड़े जामियात या मदारिस में बच्चों के ऊपर फीस नाफिज करने की सूरत हाल बन गई और जिम्मेदारान ने मजबूर होकर के फीसें नाफिज कर दी। ठीक है, अगर हालात और ज़रूफ ऐसे बन गए हैं कि हमारे पास लोगों का ताउन नहीं आता और सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, तो फीसों के निफाज का जो मसला है, फीसों की तनफीस का जो मसला है, उसमें सबसे पहली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फीसों का बोझ ना कायम करें तलबा के ऊपर। मेरे भाइयों, ईसाई दुनिया ईसाइयत फैलाने के लिए मिलियन नहीं बिलियन खर्च कर रही है। ईसाइयत फैलाने के दुनिया को, मुसलमानों को मुर्तद करने के लिए बिलियन में खर्च कर रही है पैसे, और आज हम तौहीद और सुन्नत सिखाने के लिए बच्चों से फीस का बोझ डाल करके उन्हें मजबूर कर रहे हैं। इसलिए खबरदार, अगर जरूरत है तो अला कदरी जरूरा, और कम से कम बोझ होना चाहिए। या तो फीस न रहे और जरूरत है तो जरूरत के मुताबिक रहे। आज बड़ी बड़ी फीसों ने भी इन गरीब बच्चों की कमरों को और इनके बाप बाप और इनके गार्जियंस की कमरों को कमजोर कर दिया। इनकी पीठों पर ऐसा बोझ है कि बाप फीस नहीं दे सकता। बच्चे को तौहीद कहां से सिखाए, सुन्नत कहां से सिखाए, आलिम कहां से बनाए, हाफिज कहां से बनाए। हालत इतनी नाजुक होती जा रही है, फीसों के बोझ ने सरपरस्तों की कमर तोड़ करके रख दिया है। खबरदार। दूसरा मसला क्या है, अगर ये फीस का बोझ हमने नहीं उतारा तो हमने शुरू में कहा, दरमियान में कहा कि अगर दीन और दुनिया का मुआवजा हो जाए तो इल्ला मन रहीम अल्लाह, वरना लोग दीन को छोड़ करके दुनिया की तरफ माइल होते। याद रखो, अगर फीस लेकर के हम दीन की तालीम देंगे, दुनिया ये कहेगी कि जब फीस ही अदा करनी है तो फिर मौलवी क्यों बनाना, आलिम क्यों बनाना, मस्जिद के अंदर मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला क्यों बनाना, क्यों ना अपने बच्चों को तालीम देने के लिए पैसा ही खर्च करना है। तो दुनिया की डिग्रियां दिला करके लंबे पैसे कमाएंगे, दुनिया की आशाइश हासिल करेंगे। ये दीन की तालीम से बरगश्ता करने का एक खामोश सबब बन जाएगा। इसलिए खबरदार, इससे बचने की जरूरत है। दूसरी जो बात आपसे अर्ज करनी है वो ये है कि निसाब तालीम, मैं इशारा कर चुका हूं, निसाब तालीम में बुनियादी तौर पर मदारिस के अंदर शरई उलूम को बालादस्ती होनी चाहिए। कोशिश अगर हो कि शरई उलूम पढ़ाए जाएं तो शरई उलूम पढ़ाए जाएं, एक भी सब्जेक्ट दाखिल ना किया जाए। और अगर तकाजा है कि कुछ ना कुछ असरी उलूम को दाखिल करना पड़ेगा, एक दो ठीक है, हस्बे जरूरत दाखिल किया जाए, लेकिन उसे पूरे तौर पर इक्वल या पैरेलल ना बना दिया जाए। दीन और दुनिया को क्यों बराबर करना चाहते हो? अल्लाह ने जमीन व आसमान का फर्क रखा है दुनिया और आखिरत में, इसलिए इसे भी खल्त मल्त करने से बचने की जरूरत है। तीसरी जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये है मेरे भाइयों कि दीनी मदारिस के इस पस मंजर में एक बहुत बड़ा मसला जो आज सुनने और देखने में आता है बहुत मादरत के साथ, वो ये है कि शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। शॉर्ट टर्म, 1 साला कोर्स, 2 साला कोर्स, उससे कम उससे ज्यादा, और उसके बाद डिग्रियां वही दी जा रही है जो 15 साल पढ़ने वाले एक आलिम फाजिल को दी जा रही है। नतीजा क्या निकलता है? डिग्रियां तो उसी तरह से प्रिंट हुई, इदारे का नाम तो वही है, लेकिन खोखला है अंदर से। अकीदे का इल्म नहीं, सुन्नत का इल्म नहीं, मनहज का इल्म नहीं, सलफ़े सालिहीन की सीरत का इल्म नहीं है। ऐसे ही उचटती हुई मालूमात, सरसरी मालूमात लेकर के, डिग्री लेकर के दुनिया के सामने आलिम फाजिल बनकर के घूमता है। और बहुत दुख के साथ मैं बात कर रहा हूं, मौका नहीं है कि मैं आपको तबसरा करके बताऊं, लेकिन इशारा समझना आपकी जिम्मेदारी है। और इशारा समझे कि आखिर जो जितना ज्यादा इल्म में वक्त लगाएगा उतना ही तो इल्म कशीद करेगा मेरे भाई। आखिर सहाबे किराम की जिंदगी में जब बात करने के लिए हमारे उलमा आते हैं असलाफ, तो सहाबे किराम पर भी गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं फला सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ लंबा अरसा गुजारा है। अब्दुल्लाह बिन उमर है, इब्ने अब्बास है, इब्ने मसूद हैं और दीगर सहाबे किराम हैं। और जो सहाबे किराम जिनको कम वक्त मिला, जिन्होंने थोड़ा वक्त गुजारा, उनका इल्म उनके मुकाबले में कमजोर है कि नहीं कमजोर है, महदूद है कि नहीं महदूद है मेरे भाइयों? हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए खबरदार, ये मामला भी बड़ा नाजुक है, इस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। ठीक है, इल्म जरूर पहुंचाया जाए, लेकिन डिग्रियां दे करके
उन्हें आलिम फाजिल बना करके इन उलमा की सफ में खड़े करने की जुर्रत न की जाए। आज हम साल की बात करते हैं, लोग महीने तालीम दे करके सालों की डिग्रियां दे रहे हैं। कोई माहाना 2 दिन, कोई माहाना 4 दिन, कोई माहाना 6 दिन पढ़ाता है और उसको 6 साल 8 साल 10 साल पढ़ाने के नाम से 10 साला आलिमियत की डिग्री दे रहा है। मदारिस को अंदर से खोखला करने का काम है कि नहीं है, मुझे बताओ जरा। ढांचा खड़ा है लेकिन प्रोडक्शन खोखला होता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे ही चौथी जो बात आपके सामने वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, कुरान, सुन्नत और सहाबे किराम, और आपने हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की वो बात बार बार सुनी है। बस मैं उसी को जिक्र कर लेना चाहता हूं। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया था, इन्न हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। लोगों, ये दीन जो सीख रहे हो, इल्म जो है कुरान और सुन्नत का, ये इल्म दीन, कुरान का, सुन्नत का, इस्नाद का जो इल्म हासिल कर रहे हो, ये दीन है। दीन खेल तमाशा नहीं है कि जहां खड़े हुए तमाशा देख लिया, जहां खड़े हुए मनोरंजन कर लिया, नहीं, ये इल्म दीन है। दीन फंजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। तो जरा सोच लो, गौर कर लो कि तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। इसलिए मदारिस के अंदर, जामियात के अंदर, छोटे बड़े तमाम के तमामी इदारों की बात, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। असातिज़ा मुदर्रिसीन खालिस अकीदे वाले होने चाहिए, खालिस सुन्नत के रास्ते पर चलने वाले उलमा होना चाहिए, जिनकी जबान, जिनका कलम, जिनकी सोच, जिनका मिशन खालिस सलफियत और अहले हदीसियत का आलम बरदार हो। लुक छुप करके नहीं, ढक छुप करके नहीं, रवादारी के नाम पर नहीं, मुदाहनत नहीं, सुलह कुल्लियत नहीं, सेकुलर नजरिया नहीं, मेरे भाइयों, गुलाबी अंदाज का नजरिया नहीं, एकदम खरी तालीम हो देने वाला। कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई रुझान, कोई मैलान, ना अकीदे के फसाद का, ना मनहज के फसाद का, हरगिज नहीं। अगर हमने इसका ख्याल न किया और हमारे पैदा होने वाले बच्चे, मदारिस से निकलने वाले बच्चे, अगर एक भी किसी ने बच्चे ने अगर अकीदे का, मनहज का इन्हिराफ अपने दिल में, दिमाग में बिठाया और बिंबर पर लेकर के आया, अल्लाह की कसम है सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला का जिम्मेदार। इसलिए खबरदार, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। खाल्त मल्त का चक्कर छोड़ दो मेरे भाइयों, दुनिया को नहीं अल्लाह को राजी करो। मुश्किलात भी होंगे तो अल्लाह आसान फरमा देगा। हम अपने मिशन पर कायम हैं, इसी को हम नजात का जरिया समझते हैं। इसलिए मदारिस को ऐसे ही आप टाइम पास न समझें, जैसे तैसे चलते रहे, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, और बहुत मादरत के साथ वक्त ज्यादा हो गया, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, मदारिस इस्लामिया की माली मदद करो। काफी बात हो चुकी है, माल से इन मदारिस के जड़ों को, इसके सुतूनों को मजबूत करो, अपना माल खर्च करो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नुसरत के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए माल खर्च करो। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, याद रखो। हम वतन अजीज हिंदुस्तान में रहते हैं, ये कोई इस्लामी निजाम नहीं है, कोई सऊदी अरब की तरह से वजारत तालीम का कोई बजट नहीं है जो मदारिस को मिलता हो। इसलिए खबरदार, खबरदार याद रखना, हमने आपने अगर इस जिम्मेदारी को नहीं समझा और ये मदारिस सिसकने लगे, बिलकने लगे, इसकी साखें कमजोर होने लगी, अल्लाह तबारक व तआला के जवाबदेही सख्त हो जाएगी, सख्त जवाबदेही का सामना करना होगा। ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप अपने निजी माल से मदारिस की मदद करो। मदारिस के लोग आए, आपसे चंदा मांगे, आपसे रिक्वेस्ट करें, आकर के बार बार मिले, इसका मौका मत दो, मत। आपकी जिम्मेदारी, आओ, आपको अल्लाह ने माल दिया है, आपके माल से तौहीद की, सुन्नत की खिदमत होनी चाहिए। लेकर के आओ माल, रिक्वेस्ट करके, शुक्रिया अदा करके दे करके जाओ। अगर तुमने मदारिस पे काम करने वाले जिम्मेदारों को और उलमा को तुमने भीख मांगने की तरह समझ लिया, तो याद रखो कि यह भी सख्त मौकिफ है आपका, जिसके नतीजे में सख्त जवाबदेही का मसला है, समझने की जरूरत है। आखिरी बिल्कुल जुमला क्या है मेरे भाइयों, अगर आप निजी माल से मदद नहीं कर सकते तो अपनी ज़कात से इन गरीब, फकीर, नादान तलबा को पढ़ाने के लिए और उनकी तालीम के लिए, तरबियत के लिए अपनी ज़कात का माल खर्च करके मदारिस को मजबूत करो। अहले इल्म ने यहां तक फतवा दिया है, अगर यूरोप के इलाके में जहां इक्का दुक्का कोई मुसलमान होता है, अगर वहां पर मसाजिद नहीं है, मस्जिद नहीं है जहां इबादत कर सके नए मुसलमान,
تو वहां मस्जिद को कायम करने के लिए भी ज़कात की रकम से मस्जिद को कायम किया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और माजरत के साथ अभी जो हालात चल रहे हैं मदारिस के खिलाफ, जो माली बजट की फराहमी को लेकर के ज़कात के मसारिफ का हवाला दे करके जो मदारिस को ज़कात के फंड से खारिज करने का काम चल रहा है, ये दबे खुले चाहते न चाहते मदारिस की साख को कमजोर करने का काम चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम सबको दूर निगाही की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मदारिस के तई, जामियात के तई हमें अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।